I most humbly request my Lord, Honorable Shri Justice Gurpal Singh Ahluwalia, Judge High Court of Madhya Pradesh and Member Juvenile Justice Committee, High Court of Madhya Pradesh, to adorn the dais and grace us with His Lordship's presence. I also request Ms. Anuradha Shankar, former Director General of Police, Special, Madhya Pradesh Police, to kindly come on the dais and take her seat. I also request Ms. Bharti Ali, Independent Consultant, State Judicial Academy, extend a respectful and heartfelt welcome to the 4th technical session of this state consultation on safeguarding the girl child. It is a great honor and privilege to have an esteemed panel chaired by Honorable Shri Justice Gurpal Singh Ahluwalia, Member Juvenile Justice Committee, High Court of Madhya Pradesh. His Lordship has significantly contributed to shaping legal perspective on juvenile justice and female rights. His Lordship has been a vocal voice for gender equality and to empower women through legal framework. The panel is also joined by Ms. Anuradha Shankar, former Director General of Police, Special Madhya Pradesh Police, Ms. Bharti Ali, Independent Consultant, Researcher and Trainer. We are fortunate to be joined by a panel of distinguished experts who bring a wealth of knowledge and insights to today's conversation. As a humble respect to our resource persons, I would like to begin by welcoming them. May I humbly request Sri Sachin Sharma, Additional Director, Madhya Pradesh State Judicial Academy, to welcome Honorable Justice Shri Gurpal Singh Ahluwalia, Member Juvenile Justice Committee, High Court of Madhya Pradesh, by presenting a sapling as an expression of our deep regard and esteem. Thank you, sir. May I humbly request Shri Anil Malik, Secretary Juvenile Justice Committee, High Court of Madhya Pradesh, to welcome Ms. Anuradha Shankar by presenting a sapling as a token of our respect and gratitude. May I humbly request Sri Amit Singh Sisodia, OSD, Madhya Pradesh State Judicial Academy, to welcome Ms. Bharti Ali by presenting a sapling as a token of our profound regards. Thank you, sir. The theme for this session is addressing vulnerabilities of the girls and strengthening her agency. In every society, girls hold the promise of a brighter, more equitable future. Yet, millions of girls face systematic vulnerabilities, poverty, gender-based violence, early and forced marriage, limited access to education, and health disparities. Strengthening a girl's agency means giving her tools, opportunities, and support to make informed choices, claim her rights, and actively shape her future. With this, may I most humbly request the Honorable Chair to deliver the opening remarks to formally commence the session. My esteemed sister and brother judges, participants, good afternoon to all of you. वैसे, when we are moving towards the end of the today's sessions, but this is the, I think, the second last one. तो आप लोग थोड़े से एक बोर होने वाली स्थिति में तो आ जाते हैं. तो आप लोगों को जगा के रखने के लिए भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है. और आई एम लकी इनफ कि दैट मेरे जो को पैनलिस्ट हैं, वन इज़ द सीनियर पुलिस ऑफिसर हु हैड एक्चुअली वर्कड इन द फील्ड. एक्चुअली वर्ड का दूसरे के पैनलिस्ट के साथ भी वो अप्लाई करता है, पर मैंने यहाँ पे एक्चुअली वर्ड एक डेलिबरेटली यूज़ किया है. As a police officer, you know that what are the real causes of some commission of offences. So she will be a best person to share her views with all of you that what were the real causes and what can be the probable solutions. And Madam Bharti Ali is working in this field. She knows the practical difficulties and the reasons and how to solve those problems, the social scenario of the families. But before handing over the mic to my co-panelists, I would like to share some of my views.
मैं थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके चलूँगा। अभी एक प्रश्न आया था जो प्रैक्टिकल प्रश्न था, जवाब नहीं आया, कुछ लोग हंस दिए। ये जो हंसी आई ये मुझे कहीं ना कहीं पे अंदर तक तकलीफ दे गई। ये जो सिचुएशन है बच्चों की, ये बहुत कुछ उनका फैमिली बैकग्राउंड, माता पिता की बच्चों की तरफ परवरिश, बच्चों की एजुकेशन, उनका सामाजिक परिवेश, इन सब का क्यूमुलेटिव इफेक्ट आता है जो एक रिज़ल्ट के हमें सामने आता है। और जब तक हम रियल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, हम सुपरफिशियली किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन परमानेंटली नहीं निकाल पाएंगे। कोई ऑफेंस होता है, हम ऑफेंडर को जेल में डाल देंगे, वो ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट जिसके साथ ऑफेंस होता है उसके मन मस्तिष्क के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर, उस समाज के ऊपर क्या असर पड़ता है, वो किसी आदमी के जेल में रहने से समाप्त हो जाएगा, ज़रा ये मानने वाली बात शायद है नहीं। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट मैं क्यों कह रहा हूँ, आज आप बात कहेंगे कि ये बच्चों की बात कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट की बात क्यों कर रहे हैं, आई विल क्लैरिफाई दैट ऑल्सो। सोशल एटमॉस्फेयर, ये कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं विच आर टू बी एड्रेस्ड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द परमानेंट सॉल्यूशन फॉर द गर्ल्स, माइनर गर्ल्स। मैंने एक स्टेट लेवल जुवेनाइल जस्टिस कमेटी की मीटिंग में एक रिक्वेस्ट की थी टू द स्टेट ऑफिसर्स, अथॉरिटीज़। मैंने कहा अपरेंटली शायद आप लोगों को मेरा सजेशन ऐसा लग सकता है कि इट हैज़ नथिंग टू डू विद द जुवेनाइल जस्टिस कमेटी, पर अगर आप उसको डीपर सेंस में देखेंगे तो देन यू विल रियलाइज़ कि नहीं, इट हैज़ सम रेलिवेंस। और वो मैंने ये कहा था, टू फाइंड आउट द वेज टू enhance the opportunities of employment for the parents of those children. Institutionalization, de-institutionalization, ये दो चीज़। हम फॉस्टर फैमिली की बात करते हैं, हम बायोलॉजिकल फैमिली या रियल फैमिली को इतना स्ट्रेंथन करने की बात क्यों नहीं करते हैं कि बच्चों को या तो माँ बाप छोड़ने की परिस्थिति में ना फंसे। क्योंकि कई बार खबर आती है कि भाई, अभी कल आज ही के न्यूज़पेपर में था कि एक ये जो कचरा गाड़ियाँ जाती हैं उसमें एक छोटे से बच्चे को किसी ने डाल दिया था। जो भी परिस्थिति रही होगी, वी डोंट नो, पर हम कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर फॉस्टर फैमिली, बच्चों के लिए फॉस्टर फैमिली ढूंढने के बजाय हम उसी फैमिली को स्ट्रेंथन अगर करेंगे तो अल्टीमेटली आपकी नई जनरेशन के ऊपर असर आएगा। अब उसके ऊपर कोई विचार हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम है। एजुकेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। अगर बच्चों को घर में खाने को ही नहीं मिलेगा तो वो एजुकेशन पे क्या करेंगे। परंतु जो आज प्रश्न आया था, मेरे हिसाब से वो एक बहुत रेलिवेंट प्रश्न है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अपरेंटली आपको शायद लगे या ना लगे, पर आप जितना भी उसको डीपर जाएंगे यू विल फाइंड दैट lack of education is also one of the main concern, and that is one of the best way to come out of all the situations in which our young generation is। परंतु वो प्रश्न से तकलीफ तो नहीं थी, तकलीफ सिर्फ इतनी थी कि क्यों फैसिलिटी या टीचर्स क्यों नहीं हैं, परंतु कुछ हंसी की जो आवाज़ आई वो चुप गई। मेरी एक रिक्वेस्ट है जो भी स्टेट अथॉरिटीज़ हैं, प्लीज़ इंश्योर, जब हम कोर्ट में बैठते हैं चाइल्ड पीपल टीचर पीपल रेशियो के बारे में बात होती है, राइट टू एजुकेशन, फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन के बारे, फ्री एजुकेशन की बात होती है, पर जब अब आज हमको प्रैक्टिकल सुनने को समझ में आया तो लगता है ये बहुत कुछ शायद पेपर पे ही चल रहा है। इट हैज़ टू बी इंश्योर्ड कि ये हो। और अब चूँकि हम लोग के पास उतना प्रैक्टिकल नॉलेज, फील्ड का नॉलेज
इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम लोग आवर ड्यूटी इज कन्फाइंड टू द डॉक्यूमेंट्स एंड द फाइल विच इज प्लेस्ड बिफोर अस. But as I said, I am lucky enough to of having two panelists who have the practical knowledge about the ground realities. Therefore, I would request Madam Radha Shankar to take over the mic and to share her views and to suggest the solutions also, and then we will hear the suggestions from the participants. Thank you. Over to Madam. Thank you, sir. Honorable judges, my colleagues and my friends from the UNICEF and all young participants, my young shareholders who have been in interaction with me for a very long time. It's indeed a privilege to be here, sitting here in front of you in this place where I personally feel very empowered, because not only have I witnessed your deep concern, sir, during the JJC meetings which I have participated in as ADG admin and then as ADG training various times, and I have seen how your concern has a pan out. It's a panoramic concern rather than only focused on security and protection issues. I'm feeling very confident in talking here because this is a place where I can talk about the Constitution of India without people, getting defensive about it. मैं भारत के संविधान के बारे में यहाँ बहुत खुलकर बात कर सकती हूँ क्योंकि आप सब यहाँ भारत के संविधान के रक्षक बैठे हुए हैं. हम तो सिर्फ पुलिस में रहते हुए एक इंस्ट्रूमेंट थे, एक औजार थे. आप रक्षक हैं. भारत के संविधान में समस्त नागरिकों को बराबर अधिकार दिए गए. भारत के संविधान में किसी भी प्रकार के ऊंच नीच की चर्चा नहीं है. इतने अच्छे मेंटर ग्रंथ के सामने रहते हुए, इतने अच्छे दिग्दर्शक के सामने रहते हुए हमारे देश की अवस्था क्यों है? मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहती हूँ आज़ादी की लड़ाई की तरफ. आज़ादी की लड़ाई में अभी अगस्त का महीना चल ही रहा है. अगर आपको बच्चों याद नहीं होगा तो मैं बताऊं कि 8 अगस्त की शाम को महात्मा गांधी ने ये डिक्लेयर किया कि 9 तारीख को अंग्रेज़ों भारत छोड़ो ये कहा जाएगा. रात को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. तो उन्होंने जो संदेश बनाया था वो संदेश वो नहीं पढ़ पाए और 9 तारीख को कस्तूरबा गांधी ने, जिसको आज हम अगस्त क्रांति मैदान कहते हैं बम्बई में, वहाँ से खड़े होकर कस्तूरबा गांधी ने उसको पढ़ा. वो इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि वो महात्मा गांधी की पत्नी थी. उन्होंने इसलिए पढ़ा कि वो एक ऐसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी जो साउथ अफ्रीका की जेल में पहली बार उन्होंने अपने विरोध की यात्रा शुरू की थी. और 1942 में मात्र बिहार में, मेरे राज्य में 70,000 औरतें गिरफ्तार हुई थी. 70,000 औरतें गिरफ्तार हुई थी. आपने अगर बच्चों नहीं सुना हो तो ये नाम नोट कर लीजिए. उनका नाम था मातंगिनी हाजरा, जो बंगाल में भारत का झंडा, जो हमारा तिरंगा था, उसको थाने पे, अंग्रेज़ों के थाने पे फहराने के लिए जाते हुए 3 गोलियां खाकर मर गई थी वंदे मातरम कहते हुए 1942 में. ये जो मातंगिनी हाजरा थी ये किनारे बैठ के समुद्र के अनपढ़ महिला थी. 72 साल की थी और मछली बेचा करती थी. लेकिन वो जानती थी कि भारत को आज़ाद होना है, अंग्रेज़ों को यहाँ से हटाना है और हमको अपना स्वराज्य प्राप्त करना है. स्वराज्य का मतलब सेल्फ डिटर्मिनेशन प्राप्त करना है. तो ये जो महिलाएं थीं, ये मात्र 70,000 सिर्फ बिहार की बता रही हूँ, न जाने यहाँ कितनी थी. ये जबलपुर खुद ही आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत बड़ा अखाड़ा था. तो वो जो महिलाएं थीं जो स्वतंत्रता संग्राम में थी. आपने कभी दांडी सत्याग्रह का फोटो देखा है बच्चों? सबसे आगे कौन खड़ा है? नहीं, बिल्कुल नहीं देखा है फोटो. सर से खून निकल रहा है. उस खून निकलते में अंग्रेज़ों की सरकार हिल गई थी. सरोजिनी नायडू सबसे आगे खड़ी हैं, सरोजिनी नायडू. तो मैं ये एक सवाल सब लोगों को चाहती हूँ कि वो स्वयं अपने आप से पूछें कि यह देश जो पुरुषों और महिलाओं दोनों की भागीदारी से आज़ाद हुआ, ये तो महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन की मैं चर्चा कर रही हूँ. यदि मैं क्रांतिकारी आंदोलन की चर्चा करूँ तो वहाँ भी स्त्रियों का योगदान कम नहीं था, है ना? आपने दुर्गा भाभी का नाम सुना होगा. उनका नाम दुर्गा भाभी नहीं था, लेकिन दुर्गा भाभी का नाम सुना होगा. तो ऐसे
बहुत सारे हर क्षेत्र में जहाँ भी, और सुभाष चंद्र बोस जो नेताजी सुभाष बोस ने जो आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, उसमें आपने अरुणा आसफ अली का नाम सुना, आपने लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का सुना, जिस लक्ष्मीबाई रेजिमेंट के नाम पर वो ये बनाया गया उस लक्ष्मीबाई का भी नाम सुना है ना सबने। तो आज़ादी की लड़ाई में 1857 से 1947 तक स्त्रियों का बिल्कुल प्रमुख योगदान था, प्रमुख और बराबरी का योगदान था। ये अलग बात है कि आपको किताबों में कम मिलेंगी, भी किताब ज़्यादातर पुरुषों ने लिखे हैं तो उन बेचारों को दिखाई ही नहीं पड़ी ज़्यादा, है ना, लेकिन वो कम दिखती हैं जब लिखने लगते हैं लोग तो। लेकिन अगर आप पुलिस का रिकॉर्ड देखेंगी, अगर आप यहाँ पर हमारे जबलपुर हाई कोर्ट का इतिहास देखेंगी कि कितने लोगों को यहाँ कोर्ट से बेल दी गई, या जजों ने उस वक्त अंग्रेज़ों के ज़माने में भी हमारे जजों ने कितने बढ़िया जजमेंट्स दिए हमारे आज़ादी के पक्ष में, तो आप देखेंगी कि कितनी स्त्रियों ने खड़े होकर के इस देश की आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया। तो क्या हो गया कि आज़ाद होने के बाद हमने, जैसे वो समय में एक दरार आई थी जिससे हम झांक कर बाहर देख रहे थे, वो दरार बंद हो गई और हम फिर जाकर ताले में बंद हो गए। क्या हो गया, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। मूल मुद्दा यह है कि हमने अपने आप को सोचा कि अब आज़ाद हो गया, अब चलो। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ, फिर मैं आप इस पर आती हूँ। 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगी, चिंता मत करें आप, क्योंकि 15 मिनट का वक्त दिया गया है। हमारी नानी महात्मा गांधी के जो बच्चियां जो उनके पीछे पीछे चलीं, रामगढ़ कांग्रेस में उनको महात्मा गांधी की कोठी का गार्ड बनाया गया था। तो उन्होंने कहा कि गांधी जी ने हमें स्त्रियों को बहुत एम्पावर किया। मैंने कहा कैसे? बोले हम लोगों को फाइनेंशियली एम्पावर किया। फाइनेंशियली कैसे एम्पावर किया? अब इस पर ध्यान देना, आपकी परनानियों परदादियों की बात कह रही हूँ। उन्होंने कहा कि ये उन्होंने तय किया कि हर घर से चरखे से सूत काता जाएगा। चरखा बड़ा ही बोर चीज़ लगती है ना, क्या ही चरखे से हो सकता है, लेकिन उन्होंने चरखे को एक औजार बनाया। उन्होंने कहा चरखे से सूत काता जाएगा, खादी भंडार में लाया जाएगा, और उस सूत का पैसा जो सूत कातेगा उसके ही हाथ में दिया जाएगा, दूसरे किसी को नहीं दिया जाएगा। तो स्त्रियों ने जब सूत काटती थी तो उनको कहा नहीं तुमने काटा है, लड़का आता था, नहीं अम्मा ने काटा है, बुआ ने काटा है, दीदी ने काटा, उनको बोलो आएंगी। तो चाहे अठन्नी चाहे चवन्नी उनके हाथ में आती थी। तो हमारी नानी कहती हैं कि स्त्रियों ने कभी पैसा छुआ नहीं था बेटा, क्योंकि पैसे तो पुरुषों के हाथों में रहते थे। विशेषकर संभ्रांत कुलीन घरों में पैसे पुरुषों के हाथ में रहते थे। साल में दशहरा, दिवाली, होली में साड़ी खरीद के पंडित जी, ठाकुर साहब, पटेल साहब अपनी औरतों को दे दिया करते थे, और वो बेचारी हल्दी में रंग के, आल में रंग के उसको पहन लिया करती थी। ये काम भी उन्हीं का था, बाजार औरतें नहीं जाती थी संभ्रांत घरों की। तो उन्होंने कहा कि वो जब सिक्का उनको खादी भंडार से मिलता था तो उसको वो चूमती थी, गाल से लगाती थी और रोती थी, और उन्हें लगता था कि ये क्या है, और कई बार तो धागे में पिरो के गले में पहन लेती थी। तो बोली उन्होंने उन्हें पैसा छुलवाया। तो ये जो पैसा छुलवाया, ये पैसा कहाँ से हाथ से निकल गया? पहली महिला जो IFS में हुई उसको हमारे देश के बहुत ही लिबरल और आधुनिक प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कहा कि तुम विदेशों में जाकर कैसे नौकरी करोगी, वहाँ लोगों को शराब वराब पीनी पड़ती है। केरल की थी वो, और उनको वहीं के वहीं उन्होंने भारत में कोई काम कर लो। उनके बहुत दिनों के बाद किरण बेदी मैडम को तत्कालीन प्रधानमंत्री ने बुलाकर कहा था कि कहाँ वर्दी पहनोगी, लड़कों के साथ दौड़ना पड़ेगा, तुम्हारे लिए मैं ट्रेनिंग में परिवर्तन नहीं करूँगी। तो कहीं ना कहीं आज़ादी के बाद हम सब लोगों में हम ही पीछे चली गई। हम आगे थी, चलती थी, और हम ही पीछे चली गई। बहुत ही सुंदर जो सत्र अभी सुबह से चल रहे हैं, उनमें एक दो सवाल हैं जो हमारी माननीय जजेस के भी मन में एक अंदर से खुटका है, और लोगों में तो है ही। मैं यहाँ, अनिल जी बैठे हैं, CAPT के डायरेक्टर साहब, इनसे चर्चा कर रही थी। कुछ शब्दों को हमने ऐसा बना दिया है कि उससे लोग भयाक्रांत हो जाते हैं। उसमें एक शब्द है फेमिनिज्म। फेमिनिज्म का पेट्रियार्की का ट्रांसलेशन तो सही किया गया है। पात्री मतलब पितृ, एक लैटिन, ग्रीक और संस्कृत चूँकि मौसेरी बहनें हैं तो इसलिए वही शब्द है पितृ, पात्री, पितृ। तो पैट्रियार्की, आर्की मतलब अर्क, ऊपर, अर्क जैसे सूर्य को अर्क कहते हैं, तो पैट्रियार्की एक ऊपर पुरुष को रखने का, तो उसका शब्द का अर्थ अच्छा है। लेकिन फेमिनिज्म का अर्थ नारीवाद नहीं है।
फेमिनिज्म को नारीवाद कहकर ऐसा कहना जैसे नारी की ही बात कर रहे हैं हम, और किसी की नहीं कर रहे हैं। अगर आप फेमिनिस्ट नहीं हैं तो आप पेट्रियार्कल हैं, यह बात आप समझ लीजिए। फेमिनिज्म का मतलब स्त्री को आगे करके और पुरुषों को पीट पीट के पीछे करना ये नहीं है। फेमिनिज्म का मतलब स्त्री के व्यक्तित्व को, स्त्री के अस्तित्व को स्वीकार करना है। अब जब आप स्त्री के व्यक्तित्व और अस्तित्व को स्वीकार करेंगे तो आप भारत के संविधान को मानेंगे। अगर आप भारत के संविधान को नहीं मानते हैं तो आप पुरुष स्त्री इत्यादि भेद करेंगे, जैसे जाति के आधार पे इत्यादि भेद करेंगे। अब ये जो समस्या की बात हम आज कर रहे हैं लड़कियों की एजेंसी की, इसमें मैंने कुछ लोगों से अभी चर्चा की है। आपकी चर्चा के आधार पे मैं 2-3 बातें कहना चाहती हूँ। लड़का बहुत महत्वपूर्ण हमारे यहाँ है। लड़का असल में इहलोक में तो काम आता ही है, परलोक में भी काम आता है। बहुत मुट्ठी भर लोग हैं जो लड़की हमारा अंतिम संस्कार करेगी ये पहले से तैयारी करके रखते हैं। वो कभी कभी मजबूरी में जब लड़का ही नहीं है या भतीजे से झगड़ा है तो लड़की कर देगी, नहीं तो भतीजा आकर के कर देगा, लड़की नहीं करेगी। तो लड़का इहलोक और परलोक दोनों का संवाहक है, तो बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए, बिकॉज ही इज लुकिंग आफ्टर टेम्पोरल एंड स्पिरिचुअल रियलिटी। सो दैट इज अ बिग माइंडसेट विच नीड्स टू बी looked at. I don't know whether it will be changed because I don't know about traditions. My father-in-law used to say कि tradition कैसे बनते हैं। एक घर में शादी हो रही थी हमारे यहाँ, तो उन्होंने कहा कि जो दही रखा था दूल्हे के लिए, दही और शहद, तो उसको एक बिल्ली मुंह लगाने आ रही थी। तो बिल्ली मुंह लगाने आ, तो उसको एक पत्थर मार के बिल्ली को हटाया और टोकरी से दही को ढक के उसके ऊपर पत्थर रख दिया। जब घर में अगली शादी थी तो जब पंडित जी लिस्ट बना रहे थे तो उन्होंने कहा एक बिल्ली होगी, एक दही का कटोरा होगा और एक टोकरी होगी, क्योंकि पिछली शादी में ऐसा हुआ था। दिस इज़ हाउ ट्रेडिशंस आर मेड। सो ट्रेडिशंस का जो ये कन्फ्यूजन है उसको आप दूर करेंगे अपने अपने मन से, अपने अपने इलाके से। आई कैन ओनली टॉक अबाउट माई सेल्फ। एक बहुत बड़ी समस्या जो जेंडर इश्यूज़ में है वो हमारी मेजरेबिलिटी है। हम जेंडर इश्यूज़ के प्रॉब्लम्स को कैसे मेजर करते हैं। लोली चेन जी ने मुझे ढेर सारी रिपोर्ट्स भेजी यूएन की, और उस चक्कर में मैं एक रैबिट होल में चली गई और मैंने नीला कबीर नाम की एक बांग्लादेशी रिसर्चर का बहुत बढ़िया पेपर पढ़ा। अगर जो लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं आप खोज सकते हैं, अबाउट द मेजरेबिलिटी ऑफ जेंडर इंडिसेस। और उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं लड़कियों के पास वो क्या अवेलेबल है, बोथ रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ सोशल रिसोर्सेज। द अदर थिंग इज़ कि हम उसके पास एजेंसी कितनी है। जो हम एजेंसी की बात कर रहे हैं उसकी जो एजेंसी है, मान लो उसको रिसोर्सेज अवेलेबल भी हैं। जैसे सूफिया जी ने आज सुबह में कहा, सूफिया जी या मैं या रश्मि जी या मैम, जिस तरह के घरों में पैदा हुए हैं, हमें स्कूल भेजा गया, हमें कॉलेज भेजा गया। यद्यपि मेरी बिहार में होने के कारण शादी जल्दी हो गई, तो मैं कुछ दिन हाउसवाइफ होने का भी अनुभव मैंने ले लिया। बहुत अच्छा अनुभव नहीं है ये, मैं आपको बता देती हूँ। उस अनुभव से भागने की चेष्टा ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन वो जो है हमारे पास ये, लेकिन हमारे पास क्या रिसोर्सेज के कारण हमारे पास एजेंसी थी? ये रिसोर्सेज होने के कारण एजेंसी थी। हमारे घर में चूंकि बिहार का नेशनल पास टाइम है सिविल सर्विसेज देना, तो हमने क्या कर रहे हो बेटा, आईएएस वाईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने सिविल सर्विसेज दे दिया और हम सरस्वती की कृपा से यहाँ पहुँच गए। लेकिन डिड आई हैव द एजेंसी टू से कि नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे तो एकेडेमिया में जाना है या मुझे थिएटर करना है, वट एवर। तो ये एजेंसी हमारे पास नहीं है। एजेंसी भारत में लड़कों के पास भी बहुत सारी नहीं है, नहीं तो कोटा में इतनी भीड़ नहीं होती। लड़कों के पास भी बहुत एजेंसी नहीं है, लेकिन लड़कियों के पास उससे भी कम एजेंसी है। तो ये एक बहुत मुश्किल है। जो गैप्स हमारे पास हैं, बहुत क्विकली मैं आपको गैप्स के बारे में बताना चाहती हूँ। एक तो सिस्टमिक गैप है, जो हम अभी सर ने अभी जिसको पॉइंट आउट किया कि सब हंसे तो सर को दुख हुआ, ये सच बात है। वो सबका, उस बच्ची की तकलीफ़ हम सबकी तकलीफ़ है। मैं तो एसपी होकर होशंगाबाद में थी और मेरी बेटी केंद्रीय विद्यालय में थी, और वहाँ पर तो केमिस्ट्री छोड़िए फिज़िक्स का भी टीचर नहीं था। और मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मुझे तो अंक गणित देख के मैं भाग जाना चाहती हूँ, मैं अंग्रेजी साहित्य वाली व्यक्ति हूँ। तो मैंने उसको कहा, मैंने अपने आप को गणित सिखाया और उसको पढ़ाया, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसको क्या किया जाए। लेकिन
ये परिस्थितियाँ स्कूलों में, सरकारी स्कूल में, चूँकि वो सरकारी स्कूल में जाती थी, तो सरकारी स्कूलों में ये परिस्थितियाँ आज से नहीं है। अब मेरी बेटी प्रोफेसर है कहीं पे, तो अब वो अभी भी याद करती है कि बिना टीचर के हमारा स्कूल था। तो ये जो है सर, ये जो गैप है, ये सिस्टमिक गैप जो है, इसको कौन सवाल उठाएगा, इसका कौन पूछेगा? तो आज ही मैंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस सर के सामने भी रिक्वेस्ट किया कि ये जो सिस्टमिक गैप्स हैं, इसके बारे में कोई ध्यान तो, व्हाट इज द फंक्शनिंग मैकेनिज्म ऑफ गवर्नेंस इन दिस कंट्री? इंडिविजुअल्स फंक्शन, सिस्टम कहाँ फंक्शन कर रहा है? सो दिस इज समथिंग विच इज अ क्वेश्चन विच आई वांट टू पुट इन फ्रंट ऑफ यू। लैक ऑफ रिसोर्सेज तो है ही, लैक ऑफ वॉइस तो है ही, लैक ऑफ प्लानिंग तो है ही। व्हाट इज द सोल्यूशन? सर ने कहा सोल्यूशन ज़रूर बताइए। वन ऑफ द फर्स्ट सोल्यूशन विच वी नीड टू टॉक अबाउट, एंड सर आप अपने जेजेसी के मीटिंग में इसको बार बार उठाते थे कि कन्वर्जेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। जो आपका, हमारे जो बैठ के ही नहीं होती, बच्चे से संबंधित जितने विभाग हैं, क्या वो साथ में बैठते भी हैं? अब वो मीटिंग, सो कॉल्ड मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग होनी चाहिए, जो सीपीसी की मीटिंग होनी चाहिए। मैंने तो मतलब अभी रिटायरमेंट के बाद, पिछले साल रिटायर हुई हूँ, उसके बाद एक अच्छे से अनाथ आश्रम में मुझे कुछ दिनों के लिए जोड़ दिया, मैं बोर्ड में हूँ। मैं आपको सच बताऊं, उनको फ़ोन कर करके 4 बार बोलना पड़ता है। वो आते हैं इमीडिएटली, समोसा चाय वगैरह होकर, और देख देख के, और बच्चे लोग ठीक है, बच्चों की कोई शिकायत है, कोई बच्चा आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। वो तो सिंसियरली वहाँ रन किया जा रहा है, क्योंकि कुछ पुलिस ऑफिसर्स उसको रन कर रहे हैं। जहाँ नहीं किया जा रहा है वहाँ तो देयर इज़ नथिंग। सो देयर हैज़ टू बी अ मैकेनिज्म, and a mechanism which can be questioned by you, by the JJC, कि आपने बैठक की कि नहीं, बैठक करके हमें रिपोर्ट भेजिए। ये ज़माना आपके पोर्टल्स का ज़माना है। एक बना लीजिए गोशवारा, बोलते हैं हमारे यहाँ थाने में, क्यों मैडम मिंज है कि नहीं, एक गोशवारा कोर्ट को आया करे हर महीने, और भले आप उसको न देखें, आपके डर के मारे ही लोग गोशवारा भेज देंगे, और वो भेज देंगे कि ये बैठक हुई कि नहीं हुई और इसमें कौन कौन जनाब आए। ओके, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको उसमें देखना पड़ेगा। दूसरा, जो एडोलेसेंट वॉइसेस हैं, ये तो एक सोल्यूशन का हिस्सा है ही। जस्टिस पाठक ने अभी हाल डेमोन्स्ट्रेट किया अपने पैनल पे कि एडोलेसेंट वॉइसेस आर सो इम्पॉर्टेंट एंड दे आर सो ओपनली अवेलेबल टू अस। दे आर द पीपल whom we need to consult. उनकी कंसल्टेशन शुड बी इंटीग्रेटेड विद इन द डिपार्टमेंट। हमने आपकी प्रेरणा से, इफ़ यू रिमेंबर, यू हैड टोल्ड अस वंस कि आप लोग क्यों नहीं बात करते उनसे, तो हमने शुरू किया था। एंड पुलिस कांस्टेबल्स की ट्रेनिंग में वी स्टार्टेड दिस इंटरेक्शन, एंड with the help of UNICEF we started that. Bharti Ali also has helped us out with that, and we have this, with your inspiration we started this. This should be institutionalized, and actually it is already institutionalized, because there is no question, so there is no answer. You need to question whether you like it or not. I'm very sorry to say this, but in governance, questioning always gives answers. If you forget to question, they forget to do. It's not a matter of answering, they forget to do. So therefore that has to be done. And in the end, I want to also flag some issues which are related to technology, data and evidence. The JJC needs, I mean, obviously you're doing a lot because you have got agencies with you who can do some research. Can we get some academia to be with us and do some actual research, like we got this report on the judgments of the effects of the judgments of the courts. So can we have further research on the interventions that you have done? Like, sir, a small micro research in Gwalior, with offshore Didis. That's an excellent experiment. We can have a micro research, and these can be put in public portals where people can see it, and this is something which we can do micro research, and then that data can be crunched and for future planning, and we can use that in our technological, later the programs that we make, we can use that. Thank you so much for giving me a listen in. I very quickly ran through many things because I needed to remind everyone of what Indian women were before 1947. That's why I took 5 minutes for that. Thank you so much for listening in. There are many questions I have left for you. Thank you. Now I would request Madam Bharti to take over the mic. Yeah, please, sir. Please. Respected dignitaries on the dais and off the dais, and friends from the sector,
also representatives from various departments who are here. I would like to draw attention to some of the evidence that was shared earlier in some sessions, but again, probably just to reiterate and look at it from different perspectives, different angles, with the focus on the gender divide and gender disparity. Usually when we look at data, we start with sex ratio. So I'm looking at sex ratio at birth, which is very telling, particularly on son preference. So as you can see, Madhya Pradesh, of course, there is improvement between NFHS 4 and NFHS 5, but at the same time, there are concerns which have been expressed and also reported in news. 15% of women and 13% men want more sons than daughters, while only 2 to 4% women and men want more daughters than sons. We've been speaking about this since morning. What is more important is to look at child sex ratio, and unfortunately even NFHS has stopped giving us data on child sex ratio. What we have is dated, it's census 2011. But going by that, again, there was improvement in Madhya Pradesh. The child sex ratio was 918 per 1,000 boys. Sorry, that part is missing. And there are districts which have done well, districts which haven't done well. But at the same time, what is worrying is that we have cases of feticide as well as infanticide, which are being recorded by the NCRB, yet not enough attention being paid to the issue. And this is under recording. All of us know that cases don't get reported and registered. Child health and other aspects of child health and disparity, if you look at, then all basic vaccination have been covered for children aged 6 to 59 months. But the percentage is less for, the percentage is less for girls. तो health का भी अगर हम data देखें, लड़कों का 78% लड़के जो 6 से 59 months के बीच में हैं, और लड़कियों का 76% कवरेज है सिर्फ, तो यहाँ अंतर है. अनीमिया में भी अंतर है. हालांकि आपको देखेगा 6 to 59 मंथ्स में लड़कियों में अनीमिया लड़कों से बेटर है, बट जैसे ही हम दूसरे एज ग्रुप में आते हैं, जो 15 से 19 साल के लड़के पुरुष हैं और महिलाएं हैं, तो वहाँ बहुत काफ़ी अंतर देखने को मिलता है. पुरुषों में 30.5 आपको मिलेगा अनीमिया का दर, और महिलाओं में 58.1, and that should be a cause for worry. आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर, अगर आप सोच रहे हैं कि ये तो जेंडर से रिलेटेड नहीं है, मैं क्यों दिखा रही हूँ, कारण ये है कि जब भी हम अपने जेब से खर्च करते हैं और स्वास्थ्य पे, तो सबसे अंतिम खर्च जो है वो महिलाओं के स्वास्थ्य पर होता है किसी भी परिवार में. और महिलाओं, यहाँ तो महिलाएं खुद ही यहाँ जो बैठी हैं, आप भी बता सकती हैं कि जब स्वास्थ्य की बात आती है तो क्या पहला आप अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचती हैं या पूरे परिवार के स्वास्थ्य के बारे में. सो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो बढ़ रहा है. दूसरी तरफ इंश्योरेंस नहीं मिल पा रहा है. तो ये दोनों का इम्पैक्ट गर्ल चाइल्ड के ऊपर बहुत है, महिलाओं के ऊपर बहुत है. शिक्षा की बात हुई. अब ये सत्र शुरू होने से पहले बहुत अच्छा प्रश्न आया था कि टीचर्स आते नहीं हैं. टीचर्स आते नहीं है. मेरा अपना अनुभव तो ये है दिल्ली का कि बच्चों के साथ जब बातचीत करते तो शेयर कर रहे थे, मैम कहती है अगर क्वेश्चन आए और उसमें ऑप्शन आता है ABCD, तो आप C लिख के आना, क्योंकि C को हम A भी बना सकते हैं, B भी बना सकते हैं, D भी बना सकते हैं और E भी बना सकते हैं. तो ये स्तर है आज शिक्षा का, और इस पर शायद बहुत सोचने की ज़रूरत है. और जब इस तरह का स्तर होता है तो सबसे पहले जो है लड़कियों को हटाया जाता है स्कूल से, कि क्यों भेजें भी दूर. और अभी क्या हो रहा है कि स्कूल का मर्जर्स भी हो रहा है, और वो मर्जर के कारण डिस्टेंस भी बढ़ रहा है लड़कियों के लिए स्कूल का. तो पहले जहाँ लड़कियाँ
पड़ोस के स्कूल में फिर भी जाने का सोच रही थी, अब वो दोबारा सोचना पड़ रहा है परिवारों को कि अब दूर हो गया स्कूल, भेजें या ना भेजें। तो ये कुछ बहुत सारे मसले हैं। और पहले के सत्र से एक और विषय जो मेरे दिमाग में आया था वो ये था कि जब हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करते हैं तो स्कूल में तो चेंजिंग रूम्स नहीं है, जो निकल के आया एक बहुत बड़ा रिकमेंडेशन। टॉयलेट्स नहीं है लड़कियों के लिए कि वो इस्तेमाल करने लायक हों। सो व्हेन वी लुक एट स्कूल एनरोलमेंट डेटा, हमारे पास यहाँ भी जेंडर गैप दिखाई देता है। प्री प्राइमरी लेवल पे बहुत ज़्यादा जेंडर गैप है। उसके क्या कारण है वो समझने की ज़रूरत है। और जब हम आगे बढ़ेंगे, ये भी अजीब है कि जब प्री प्राइमरी लेवल पे कम लड़कियां हैं, लड़के ज़्यादा हैं, अचानक एलिमेंट्री लेवल पे आप देखते हैं कि ज़्यादा लड़के ड्रॉप आउट कर रहे हैं। और वो अगर ड्रॉप आउट कर रहे हैं तो वो एक कंसर्न हमारे लिए होना चाहिए। जैसे मैम ने कहा कि फेमिनिज्म सिर्फ महिलाओं की बात नहीं है, नारी की बात नहीं है, वो सभी जेंडर की बात है वहाँ। तो इसके इम्प्लीकेशंस बहुत हैं, पर्टिकुलरली महिलाओं के लिए। जब लड़के ड्रॉप आउट कर जाते हैं, कहाँ जाते हैं, हम सब समझ सकते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। वो लेबर सिचुएशंस में जा सकते हैं जहाँ उनको और ज़्यादा वायलेंस फेस करना पड़ेगा। और वो वायलेंस उन लड़कों की लाइफ में जब नॉर्मलाइज हो जाता है तो वो वायलेंस परिवार में अपनी बहनों पर, अपनी माता पर भी और फिर अपनी पत्नी पर भी निकलता है। तो ये डेटा बहुत कुछ चिंताजनक है हमारे लिए कि 6 से 10 की उम्र में भी जो है आउट ऑफ स्कूल बॉयज़ जो हैं वो ज़्यादा हैं। और फिर अचानक जब हम और आगे डेटा को देखें, आउट ऑफ स्कूल बॉयज़ एलिमेंट्री लेवल पे ज़्यादा ड्रॉप आउट हो रहे हैं और आउट ऑफ स्कूल बॉयज़ ज़्यादा हैं। लेकिन जो आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स हैं उसका डेटा भी उतना ही चिंताजनक है, क्योंकि आप देखिए वो डेटा जो है जैसे ही एज ग्रुप बढ़ता है, 6 से 11 वर्ष जो ब्लू लाइन है, आप देखेगी कि 42% आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स हैं और उतना ही थोड़ा 42.1% 6 से 13 वर्ष की लड़कियों का है। तो ऐसा नहीं है कि लड़के ज़्यादा ड्रॉप आउट कर रहे हैं, आउट ऑफ स्कूल है, तो जो लड़कियां आउट ऑफ स्कूल है उसका कुछ बहुत अच्छा डेटा निकल के आ रहा है, वैसा नहीं है। एसर का रिपोर्ट अगर हम देखें तो 15 से 16 साल की उम्र एक दूसरा बहुत ही वल्नरेबल एज ग्रुप है। वहाँ भी जो है लड़कियों का डेटा बहुत अच्छा नहीं है, स्कूल का पर्टिकुलरली। और मध्य प्रदेश का आप देखेंगे, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है लड़कियों का जो 15 से 16 साल के एनरोल्ड नहीं है स्कूल में। अटेंडेंस में भी फ़र्क है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि 15 से 17 साल की लड़कियां एनरोल्ड नहीं हैं, अटेंडेंस में भी काफ़ी फ़र्क है। अगर एनरोल्ड हैं तो वो पूरी तरह से स्कूल अटेंड नहीं कर रही हैं, जैसा आपको दिख रहा है इस टेबल में। पर्टिकुलरली 15 से 17 साल में आप देखिए 55% कम है। जेंडर बेस्ड वायलेंस का हमारे पास जो डेटा अक्सर रहता है वो एनसीआरबी का रहता है, यानी एफआईआर जो रजिस्टर होती हैं। लेकिन एनएफएचएस को साथ में भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमको स्पाउसल वायलेंस, फिजिकल वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस का कुछ डेटा देता है, एज ग्रुप भले ही अलग हो। तो 18 से 29 साल तक की जो महिलाएं हैं जिन्होंने सेक्सुअल वायलेंस एक्सपीरियंस किया है बाय द एज ऑफ 18, 18 साल होने तक, वो देखने में 1.04% हमको जो दिख रहा है वो उसको हमें कम नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उस एज ग्रुप में जितनी भी महिलाएं हैं उसका वो 1.04% है। So 28% women experienced one or the other form of violence and 5% experienced both. लेकिन मदद मांगने वाली केवल 15% महिलाएं थी। तो मदद मांगने का जो कल्चर है उसको चेंज कैसे हम करें, उस पर सोचना पड़ेगा कि अगर मेरे साथ बुरा हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, मैं क्यों नहीं रिपोर्ट कर रही, क्यों नहीं मदद मांग रही, और मदद फिर कहाँ से, किससे, वो जानकारी मेरे पास है या नहीं। चाइल्ड मैरिज का डेटा देखें तो जो एनएफएचएस से डेटा आता है उसमें हम सब सुबह से बात कर रहे हैं कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, देयर इज़ नो डाउट्स अबाउट दैट। पर एक सवाल जब मैं लोरी चेन के साथ बात कर रही थी तो हम यही सवाल आ रहा था
कि NFHS 3 से लेके अब तक 15 साल निकले तब जाकर के हम इस डेटा पे आए हैं। तो और कितने साल हम लगाना चाहेंगे इसको पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए। हालांकि अब हमारे पास अपना एक्शन प्लान है जिसमें हम चाइल्ड मैरिज फ्री विलेज की भी बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स डायरेक्शंस भी हैं जिसमें चाइल्ड मैरिज फ्री की बात कर रहे हैं विलेज की। लेकिन कब तक और उसकी क्या रणनीति को कैसे हम लागू करेंगे, शायद उस पर सोचने का समय आ गया है। टीनेज प्रेगनेंसी एक और एरिया है कंसर्न का। तो टीनेज प्रेगनेंसीज हैव ऑफ कोर्स गॉन अप एज वी कैन सी, और उसका डायरेक्ट संबंध शिक्षा से है, वो भी हमको इस ग्राफ में दिख रहा है। तो 19% टीनेज गर्ल्स जो प्रेग्नेंट हैं वो उनके पास कोई किसी भी प्रकार का स्कूलिंग नहीं था, कोई शिक्षा नहीं था। और अलग कंसर्न्स हैं चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड जो है कि या आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड वन कंसर्न। NCRB का डेटा अगर हम देखें, cases registered under PCMA is only 7 in the year 2022. Only 7 cases. So ऐसा नहीं है कि हम लोग समझते नहीं है ये 7 कैसे हो सकता है, but clearly the law has not been the reason for a drop or for an improvement in the child marriage rates. More importantly, if you look at the data on kidnapping for marriage, 1,416, that is also very telling कि किडनैपिंग फॉर मैरिज के 1416 केस अगर रजिस्टर हो रहे हैं, ये कौन से केस हैं? और सुबह भी बात हुई थी कि कुछ यंग लड़के लड़कियां अपनी पसंद से जो है शादी कर रहे हैं, अंडर एज शादी कर रहे हैं। पर इसको सोचने की ज़रूरत है कि इस पे कौन सा कानून लागू हो, कैसे कानून लागू हो, और कानून लागू करने का जो है वो क्या मकसद होना चाहिए। 17% लड़कियां जो 18 साल से कम उम्र की हैं वो जिन्होंने सुइसाइड किया है वो हाउसवाइफ्स हैं ना, वो क्यों नहीं डॉक्यूमेंट हो रहे, उससे लर्निंग होना बहुत ज़रूरी है। वल्नरेबल कम्युनिटीज़ की बात हो गई। ये एक और इम्पॉर्टेंट जजमेंट है प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट रिकग्नाइज करता है कि अनमैरिड लड़कियों का भी अधिकार है उनकी अपनी बॉडी पर। तो अगर विवाह में कोई MTP कराना चाहता है, उसके लिए क्यों कानून जो है इतना बॉटलनेक होना चाहिए, इतना हर्डल बनना चाहिए। Then practice directions are needed for CWCs and CCIs. I think this is in the context of girls who complete the age of 18 years, 18 की हो गई और वो बालिका गृह में हैं, उसके बाद ना CWC उनको जाने देता है ना CCI जाने देता है अगर कोई लेने वाला नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या हो सकता है, 18 से कम उम्र की लड़कियां भी अगर उनको कोई लेने वाला नहीं है तो समझ नहीं आता कि क्या किया जाए उनके साथ। तो ये इस पे अगर कुछ सर प्रैक्टिस डायरेक्शंस इशू हो सकें। हमारे पास रूल 78 है, रूल 79 है JJ रूल्स का, उसको ध्यान में रखते हुए दैट वुड बी आई थिंक अ बिग स्टेप फॉर CWCs ऑल्सो। दे डोंट नो व्हाट टू डू। वो कहते हैं कि हम कैसे छोड़ दें, हमारी जिम्मेदारी है, मगर वो एडल्ट हो गई है तो हम उसको कैसे अंदर रखें। Then operational guidelines also required for vulnerable witness guidelines on recording evidence of vulnerable witnesses. ये guidelines Supreme Court से issue हो चुकी हैं and I'm sure most states have their set of guidelines. लेकिन ये operationalize नहीं हो पा रही हैं, अभी भी कुछ issues में दिक्कत आ रही है। जैसे guidelines में लिखा है प्री ट्रायल कोर्ट विजिट करानी है, वो कैसे होगी प्री ट्रायल कोर्ट विजिट, कौन कराएगा? किसी की जिम्मेदारी फिक्स नहीं है वहाँ। तो ये ऐसे कुछ इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए अगर इनको ऑपरेशनलाइज करने के लिए कुछ SOPs निकल सकें। And similarly with the witness protection scheme of 2018, everybody says it's not notified in our state, but it's part of the Supreme Court judgment. So if all that is required is a notification, then I think we should do it. This is my last, I think, yeah. Madhya Pradesh also has a child safeguarding policy. In fact, we were trying to use it to develop something in Gujarat. It's an excellent policy जो ये कहता है कि जितनी भी संस्थाएं हैं
जहाँ बच्चों के साथ काम होता है या बच्चों पर काम होता है, उनके हर स्टाफ की और उनके हर वॉलंटियर की जिम्मेदारी है कि बच्चे प्रोटेक्टेड रहे। तो जो अंडरटेकिंग की बात मैम हो रही थी सुबह कि हम अंडरटेकिंग लें स्टाफ से या और वॉलंटियर्स से, वो ऑलरेडी आपकी पॉलिसी में है, लागू नहीं हो रहा है। ऐसे ही पॉक्सो के कमिटीज़ हर स्कूल में होने चाहिए, क्या वो हैं नहीं हैं उसका भी कोई ऑडिट नहीं हो रहा है, और वो कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि पॉक्सो की कमेटी जो है वो ये नहीं कह सकती कि चलिए हम इंक्वायरी बिठाते हैं, उनको तो मैंडेटरी रिपोर्टिंग करना है पॉक्सो में, तो उनको अपनी जिम्मेदारियां समझाने का भी एक बहुत बड़ा कार्यभार है जो ट्रेनिंग के माध्यम से पूरा करने की ज़रूरत है। सो एंड लास्ट पॉइंट, फैमिली स्ट्रेंथनिंग। हम फैमिली स्ट्रेंथनिंग उसको एक बहुत ठोस मिशन मोड में एजेंडा लेना होगा। पेरेंटिंग के बहुत सारे चैलेंजेस सुबह से सामने आए, ऑनलाइन इश्यूज़ को लेके पेरेंटिंग के चैलेंजेस आए, टीनेज इश्यूज़ को लेके पेरेंटिंग के चैलेंजेस आए। तो फैमिली स्ट्रेंथिंग और पेरेंटिंग एक ऐसा कंपोनेंट है जिस पे काम होना चाहिए। थैंक यू सो मच। Thank you, Madam Bharti. We have already consumed the time which was allotted to us, but still I would like to summarize what our co-panelists have said. एक मैडम शंकर ने ये कहा था कि क्वेश्चनिंग होनी चाहिए। जब मैडम गवर्नमेंट में थी तो हमारे क्वेश्चन से बहुत परेशान रहते थे। कभी नहीं, सवाल क्वेश्चन का नहीं है। सवाल ये रहता है कि हमें क्वेश्चन करने की ज़रूरत क्यों हो रही है। अगर हर आदमी जिसको जो ड्यूटी दी गई है अगर वो उसका काम कर रहा है तो उसको रिमाइंड कराया जा सकता है, क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं आनी चाहिए। दैट मीन्स वी आर समथिंग इज़ लैकिंग इन आवर सिंसियर परफॉर्मेंस ऑफ आवर ड्यूटीज़। दूसरा, कुछ lack of infrastructure facilities which are necessary for the girls. This is all to be looked into by the government. और उस पर कई reasons हो सकते हैं सर. This is not the stage where we should discuss all those issues. But except saying that it is for the government to look into this aspect, that all the minimum facilities or bare facilities are made available so that the children can enjoy their school life. It is for the government to look into that aspect. Gender-based violence है, this is the law and order situation, और इसमें बहुत कुछ हमारी जनरल अवेयरनेस जिसको हम पेरेंटिंग भी कह सकते हैं, that is required. जैसे मैंने अभी अपने शुरू में भी कहा था, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का या डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में अंतर यही होता है कि व्हेन वी लुक फॉर द फॉस्टर फैमिली एंड व्हाई वी डोंट लुक फॉर द बायोलॉजिकल फैमिली, कि उनको स्ट्रेंथन करें तो वो बच्चों को ज़्यादा सिक्योरिटी मिलेगी. अब दीज आर द इश्यूज, child या girl vulnerability and strengthening of a girl, it has, I think it has more or less as a social issue. कुछ social चीज़ें हैं जहाँ पे वो lacking है, उसके कारण it has given birth to all these problems. बच्चा लड़का रात को 11 बजे तक बाहर रहता है तो शायद माँ बाप को उतनी तकलीफ नहीं होती, पर बेटी अगर 9 बजे के बाद बाहर हो जाए तो वो बार बार फ़ोन लगाने लगते हैं. क्यों? क्योंकि उनकी उसकी सिक्योरिटी की चिंता होने लगती है. और सिक्योरिटी की चिंता क्यों होती है, एवरीबडी नोज. तो ये सिचुएशन क्यों हो रही है, आई एम रिमाइंडेड ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंस. मैं वो स्टेट का नाम नहीं लेना चाहूँगा. मेरे कज़न्स एक स्टेट था जब बाद में वो टेररिस्ट अफेक्टेड स्टेट हुआ. आई एम टॉकिंग अबाउट द प्री टेररिज्म एरा. वहाँ पर भी एजुकेशन फैसिलिटीज़ बहुत एडवांस थी. आई एम टॉकिंग अबाउट माई कज़न सिस्टर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर पर्सन बिकॉज आई हैव अ पर्सनल नॉलेज. वो लोग सुबह 3:30 बजे कोचिंग क्लास अटेंड करने अकेले एक्टिवा पे कोई 15 किलोमीटर जा रहा है, कोई 20 किलोमीटर जा रहा है, विदाउट एनी अप्रीहेंशन एंड any apprehension either in the mind of their family or in the mind of my cousin sisters. अगर आपका सोशल सिनेरियो सेफ है, बहुत कुछ चीज़ें उस पर चेंज हो जाती हैं. ये जो डर लगता है कि बच्चा गया है बाहर वो सेफली वापस आ जाए, it has lot of things to do with the law and order situation. चाइल्ड मैरिज, शायद ये जो vulnerability है attached to the girls, it has given birth टू अ थिंकिंग कि अरे ये तो लाइबिलिटी हो गई है.
अभी लड़के और लड़की में अंतर सिर्फ इसलिए आ रहा है कि लड़के को लायबिलिटी ना मान के वो सोचते वंश बढ़ाएगा, कहाँ से बढ़ा देगा बिना लड़की के, बिना बहू के, बिना पत्नी के, ये हमें नहीं मालूम, लोग सोचते नहीं हैं। परंतु जिसकी बेटी है उसको लगता है दहेज देना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसकी ज़िंदगी खुशहाल होगी नहीं होगी, सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये सारी सिचुएशंस जो हैं हम किसी को समझाने से शायद नहीं समझा पाएंगे। उसके लिए हमको सोशल एटमॉस्फेयर उसको उतना ज़्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा कि जहाँ पे ये जो डिफरेंसेस हैं या एप्रीहेंशंस हैं ये धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएं। तो सोशल पेरेंटिंग को वर्ड को मैं थोड़ा सा और एनलार्ज करना चाहता हूँ। इनफैक्ट आई वांट टू से द सेम थिंग बट विद अ वाइडर सेंस ऑफ मीनिंग। अब थोड़ा सा चाइल्ड मैरिज का एक और रीज़न भी है, पुअर फैमिली बैकग्राउंड भी है। हम लोग तो लीगल साइड पे जब बैठते हैं तभी कम अक्रॉस नंबर ऑफ केसेस कि जहाँ पे ये सारी सिचुएशंस आ रही हैं। स्टिल इट इज़ नॉट अ स्टेज टू डिस्कस ऑल दैट इश्यूज, बट व्हाट आई पर्सनली फील कि दैट we should bring awareness amongst all the families, whether they are having any girl child or not, okay, that every child has a right to live with dignity. मैंने एक दो केसेस में ओपन कोर्ट में भी कहा, if a girl child is not safe in our society, then whether we can claim that it is a civilized society. It is a question which is to be asked by ourselves, not to somebody else. We can easily blame कि पुलिस क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, फाइन, उनका अपने एक लिमिटेड रोल है, वो 24 घंटे आपके साथ नहीं रह सकते हैं, वो आपके एक ऑफेंडर को पनिशमेंट दिला सकते हैं, पर हमको बात करनी है ऑफेंस हो क्यों रहा है, उसके ऊपर जाना है। और अगर इन सब चीज़ों को अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो जो हमारे इस सेशन का इशू है वल्नरेबिलिटी ऑफ चाइल्ड, दैट विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ अ चाइल्ड। तो ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि जो को एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगी। अगर हमने एक चीज़ को भी वाइप आउट कर दिया तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब वो बाकी ये फोर्स मैरिजेस, और मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा था कि चाइल्ड मैरिज बाय इटसेल्फ इज़ नॉट अ अवॉइड मैरिज, इट इज़ अवॉइडेबल मैरिज। और जो मैडम जो स्लाइड दिखा रहे थे उसमें हाई कोर्ट का था कि भाई अब the husband is not entitled to give maintenance in case of a void marriage. Section 125 जो था वो it speaks about legally wedded wife. अब उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन एनलार्ज किया है। मैंने भी 2016 में इमीडिएटली 3 months आफ्टर माई एलिवेशन मैंने लीगली वेडेड को थोड़ा सा और करके द पर्सन्स हु आर लिविंग इन रिलेशनशिप इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द पर्सन वाज हैविंग अ लिविंग स्पाउस, द हस्बैंड वाज हैविंग अ लिविंग स्पाउस, स्टिल he performed marriage. In fact, it was not as strictly in the case of a live-in relationship. He played fraud on the second wife, performed marriage, and later on it was found that since he was already having a living spouse, तो वो void marriage declare हो चुकी थी. In spite of I said कि नहीं, उसको legally जैसे भी हम लोग कर सकते थे किया, क्योंकि हमारे पास एक limitation है कि that we cannot legislate, we can simply interpret. So it is for the general people, it is for the parliament to legislate the law, and parliament इतना कैजुअली नहीं करती, वो सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ करती है। तो बट स्टिल इट इज़ फॉर द पार्लियामेंट टू थिंक इट ओवर। काफ़ी कुछ चाइल्ड मैरिजेस का क्वेश्चन अराइज हो गया बिकॉज अर्लियर द एज was 16 years, but thereafter in 2013 it was enhanced to 18 years. तो अगर आप एक सर्वे करेंगे तो 16 और 18 के बीच का जो आपको गैप मिलेगा वो बहुत बड़ा एक फिगर मिलेगा। तो वो जो 16 से 18 साल एनहांस हुआ वो रिस्पॉन्सिबल है नहीं है। इट इज़ नॉट फॉर अस टू से, इट इज़ फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड, इट इज़ फॉर द जनरल पीपल टू डिसाइड वेदर इट शुड रिमेन देयर और इट शुड बी रिड्यूस्ड और इट शुड बी एनहांस्ड। अब आई थिंक अब मैं शायद ज़्यादा समय ले रहा हूँ, तो अब मैं रुक के मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के कोई छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं तो आई वुड लाइक टू आंसर विद इन फ्यू सेकेंड्स सो दैट द लास्ट सेशन में स्टार्ट। Madam Shankar, you had taken the issue of closing the systemic gap between, and rather than just letting individuals function, Sir. we have a system in place where things happen by itself, and Sir. institutionalizing solutions, Sir. rather than depending upon the individual. Now, the institutional solutions are already in place.
But I may have a slight disagreement with the brother when he says that we are unable, that people are not working. People are not working. There are a lot of reasons when you are not given the autonomy to work. Not everyone works. In a situation when there is no autonomy to work, there will be certain individuals who will work. But the institutionalized work that is expected out of them will fail. Let me give a small example. Poor man goes to the police station to register an FIR of rape of his daughter by a politician's son. He will not register it. You escalate it to the SP. SP knows it's a political son and the man does not have a voice of his own. He also will not act. Why? Because he's sitting, let us say, in a city like Bhopal. He doesn't want to go to an outlying, and especially if he's a careerist. You can't blame a person for being a careerist. But the fact is, somewhere down the line, the police also has not tried to wrest its independence from the political class, from the political. You had 8 police commission reports, National Police Commission, the Dharamveer reports, way back in the 70s, if I'm not mistaken. The only time it was agitated before the Supreme Court was Prakash Singh. Prakash Singh also, the Supreme Court passed a lot of directions for the autonomy of the police, but that went into the dustbin. And today, what is the police right now, especially in central India, what we see is basically a group of people who are there for the politicians to kick around. And now even the general public does not feel any fear in assaulting them, assaulting the police. Yes, the judiciary is also equally at fault because it stands by the bylane and just watches, where it has sufficient powers to take up suo motu notice or not. But ultimately, it boils down to the individual. Individuals do make this difference. People like you have made the difference. Thank you, sir. And there have been other instances. There is one Director General, former Director General, long time back, Mr. P.D. Malviya, who was removed from the post of Director General of Police by 3 station house officers. I know, sir. He was my training director. Correct. And he went into police housing. He could have kowtowed to the political order of that day and continued to remain as DGP MP. I could have. So could you have. But you made a choice. Sir. You made a choice. That's why people still respect you. May not be very loudly, but in silence they do. And that's the actual respect, not one word that pains your ears. Is not respect. Sir. So, when you talk about institutionalizing solutions, when the institution is still there, you are a force of what, 1,20,000 today in Madhya Pradesh? Yes. For a population of almost 8.2 crores, Yes. take the decadal growth to be at least 1 crore every 10 to 11 years. The last one was 2011. After that, we have And no there's data. still a 28% vacancy, sir. Yes, which is not getting filled up. Yes, sir. Until and unless you have something like your Agniveer project comes up for the police also, which may be in the pipeline, and I'm sure you will not make any noise about it. Even if it is counterproductive, those who are there today, I don't think anyone will make a noise. They'll be willing to accept that kind of a But situation. even if you do, sir, it falls on deaf ears. That's right. But I don't know whether how many vote, because the person who raises the voice, he knows where he goes. I'm on YouTube raising my voice. After you have retired, even during the time you were in force, Yes, I was. You did that. You did that. Yes, There sir. were others who did that. Yes, but sir. that numbers declined Yes, over sir. a period of time Yes, to sir. the point of being literally non-existent. So my question is, how do you overcome this question of the careerist policeman, who may be the problem because the institutions are all there in place. He just needs to take a hard stand. If each one of you took a hard stand, okay, I go, I get transferred, the next man comes in, he does the same thing. He will also register the other, he gets transferred. So if that be the case, how do you try to overcome that? That's a very important question, sir, and I have answered it over my career for the last 2 decades, many times. The thing is that the institutions can work because, as you said, they are in place and there are rules in place. The problem with our system, and respectable sir thought that I was asking about questioning by the judiciary. I was asking about questioning by the people of India. The people of India need to be responsible for this country called India. The people of Madhya Pradesh need to take ownership of Madhya Pradesh. When I say questioning, and because I started with a story from Mahatma Gandhi, it means I'm looking at it from the Gandhian perspective, where everybody is empowered. And empowerment means that you need to question the state that you're funding. If you and I are both getting our pays and I'm getting my pension now, it is from the people of India who are buying soap and salt.
to quote Manoj Jha. So, you know, this soap and salt buying public, the poorest of them eat salt and they are paying for us. So they need to question. This questioning needs to come. And I have been talking about this questioning since, I don't know, at Kingdom Come. But the thing is, sir, that this institution does work only when the individual, as you said, is important. How can we ensure that? Now, the thing is that are we not constitutionally, and I began with the Constitution of India, and I want to invoke the Constitution of India, are we not three parts of the governance system? Are we not parliament, judiciary, and executive? How can the executive become subservient to a class which now we know very well, and this again, this is not something which I'm saying after retirement. I always tell people, go back to, thank God for YouTube, you'll find me talking this 10 years back, that these people who have their own vested interests, right, they have their own businesses, and they would want you to use as a tool. I mean, the tool that the executive has become. Your point is that the executive has become a tool, and it has become a tool. What is the counterbalance? We have to look at, because executive is not a sole, independent, floating island in the constitutional system of India. There is a counterbalance through parliament and through judiciary. Now we know who the parliament is peopled with. We know very well. This is something which is not hidden from any of us. So then who remains? The judiciary remains. And that is why judicial oversight should not be unwelcome in keeping the executive in check. And the judiciary doesn't need to question, it needs to direct. Because judiciary overarches, particularly as you were talking about the police, in the matter of police. I mean, I have seen judicial, oversight, the judicial guidance, guiding traffic problems and traffic issues. They are so minor. Traffic issues are very minor. But वहाँ पे भी judiciary के द्वारा दिए गए निर्देशों के कारण things have improved. So what my suggestion earlier was also that this institution or these executive institutions which appear to not function all have proper rules and laws, all have rules of business. They need to be followed. Because if the country is a democracy, it's a republic, then it needs to have a rule of law. Now, rule of law को कौन follow कराएगा? कोई अगर leadership in the department is falling short, मान लीजिए, मैं नहीं कह रही हूँ कि it is falling short, but just in case it is falling short in any department of the governance, then either the people need to talk about it or the judiciary needs to, because this country has to be run by everyone cumulatively, and that is why I talk of convergence. That is why I talk of multi-agency. And although judiciary is not an agency, but still it's an agent of change. It's not, I will never disrespect you by calling you an agency, but you are an agent of change in a country which is completely dynamic. I mean, 1947 का भारत तो नहीं है ना सर अभी. तो आज के ज़माने के हिसाब से like you are updated with laws. हमारे को तो अब आप पूछोगे तो अभी लॉ ही नया वाला क्या बना है तो मुझे नहीं पूरा मालूम है. लेकिन हाँ, तो वो सही बात है. तो वो उसको मेरा तो ये कहना है कि that convergence of powers should be there, and these people who have been embedded with these constitutional powers must remember this recall we should have constantly. Sir, मैं अपने constables को भी training में हमेशा बोलती थी, you must always recall that your officers imagined by the Constituent Assembly and confirmed by the Constitution of India. You just cannot go beyond that. And let us all think about that, sir. I know that the Constitution is not a very welcome instrument right now, but still, for you at least, it is the guiding principle. And I personally feel that as long as we keep it as the guiding principle, I think we'll make things work. It can work. I mean, it works better than many other countries, including Burkina Faso. It does. No, I mean, look at the president, how he talks to powers. That's why I'm saying. सभी को मेरा नमस्ते. मैं अन्नू ठकोरिया हूँ, यूथ सेफ सिटी की यूथ लीडर. मैम, हमारे यहाँ कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोविड के पहले प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते थे और उनकी फ़ीस ना देने के कारण टीसी और मार्कशीट नहीं मिली, जिनसे वो
शिक्षा से दूर हो गए। तो मैम ऐसे बच्चों को भी स्कूल में स्कूल जाने के लिए और उनको शिक्षा की ज़रूरत है, शिक्षा से जोड़ने की ज़रूरत है। और मैं इस क्वेश्चन को पास ओवर करूंगा फॉर द नेक्स्ट सेक्शन, जो नेक्स्ट सेशन का जो सब्जेक्ट है सेफ गार्डिंग द राइट्स ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। तो अब गर्ल चाइल्ड या सिर्फ चाइल्ड, उसको अपन दोनों तरीके से देखेंगे। तो आई वुड रिक्वेस्ट द नेक्स्ट पैनलिस्ट आपके इस प्रश्न का उत्तर दें, पर लेकिन इसको इस सेशन को कंक्लूड करने से पहले आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई माई सेल्फ। आई थिंक आई हैव बीन मिसअंडरस्टूड। मैडम ने जब बात की थी कि क्वेश्चनिंग की, तो मेरा कहना था कि हमको वो स्थिति खड़ी करनी है जहाँ क्वेश्चनिंग की ज़रूरत ना पड़े। जब हम क्वेश्चन करते हैं तो इसका मतलब है कि हम में से कोई ऐसा है जो ठीक से काम नहीं कर रहा है। बात सही। हमारा सिस्टम काम नहीं कर रहा है, ये कभी नहीं कहा। एक और इसको सिंपल तरीके से मैं समझाता हूँ। फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज, दीज आर टू पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक एनफोर्सेबल है, एक डिज़ायरेबल है, बट इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल। अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की पे ध्यान देंगे तो फंडामेंटल राइट्स हम ऑटोमेटिकली दूसरे का प्रोटेक्ट कर देंगे। हम बात करते हैं कॉरपोरेशन यहाँ से कचरा नहीं उठाता, उसने डस्टबिन रखा हुआ, हम डस्टबिन के अंदर कचरा ना डाल के अलग फेंक देंगे। तो बेसिकली क्या है कि मेरा क्वेश्चन ये था, मेरा आंसर ये था कि हमको ऐसा एक सोशल सिनेरियो पैदा करना है, तैयार करना है, जब हम हर इंसान अपनी अपनी ड्यूटी को सिंसियरली अगर फॉलो करेगा तो हमको क्वेश्चनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, हो सकता है किसी के मन से, किसी के ध्यान से कोई चीज़ एस्केप हो जाए तो उसको रिमाइंड करने की ज़रूरत पड़ जाए। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रिमाइंडिंग अ पर्सन एंड क्वेश्चनिंग अ पर्सन। क्वेश्चनिंग वुड ऑटोमेटिकली इंक्लूड के दैट वी आर हैविंग एन इम्प्रेशन के दैट ही इज़ डूइंग डेलिबरेटली, इग्नोर कर रहा है, और भूल जाना और उस पर ध्यान नहीं दे पाना, दीज आर द टू थिंग्स। माई इंटेंशन वाज टू से दैट लेट अस develop a society where nobody is required to question, but only at the most the person may be required to remind a person कि साहब ये चीज़ छूट गई है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। Neither I was asking that the question should be asked by the judiciary, because today we are not sitting here as a judicial officers, we are sitting as a panelist, so our position is also just like an ordinary person. तो हमको हमारी ऑफिशियल ड्यूटी से मत जोड़िएगा। एक जनरल चीज़ है जो सोसाइटी के लिए है, हमको ऐसी सोसाइटी तैयार करनी है कि जहाँ पे हर आदमी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। ये मेरा उसका आशय था। फेमिनिज्म की परिभाषा आपकी, मेरी और जनरल अलग अलग हो सकती है। तो मैंने किस सेंस में यूज़ किया और आपने उसके किस सेंस में परसीव किया, मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं था। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मैं इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन को उनके अधिकारों को श्रद्धांजलि देने का दिन मानती हूँ कि एक दिन उसे याद कर लिया गया। अगर ये इंटरनेशनल डे ऑफ मेन हो तब मैं बहुत बहुत सहजता से उस दिन को मनाऊँगी। तो मेरा फेमिनिज्म का और इतने ओपनली ये बोलना, ताकि मैं आपको ये कन्वे कर सकूं कि मैं जी मैम वो मैं आप पे नहीं बोल रही थी, मैं ये कह रही थी कि फेमिनिज्म जो है उसका एक सेट डेफिनेशन है, वो एक सोशियोलॉजी का टर्म है और फेमिनिज्म का सेट डेफिनेशन है, मतलब उसका इंटरप्रिटेशन नहीं है मैम। उसका अर्थ है कीपिंग विमेन, गिविंग विमेन द चॉइस ऑफ इक्वल राइट्स, एंड ये सिर्फ इतना ही है। तो उसमें हम बात कर रहे थे, आई वॉज टॉकिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन आई वॉज हैविंग विद मिस्टर यादव, अनिल यादव यहाँ बैठे, तो हम लोग ये बात की थी कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिन टर्म्स को लोगों ने इंटरप्रिटेशन में डाल दिया है। इट इज़ नॉट अ टर्म टू बी इंटरप्रेटेड, इट्स समथिंग विच इज़ डिफाइंड। तो जो डिफाइंड है मैम, जैसे जस्टिस इज डिफाइंड। जी मैम, तो यही मेरा कोई नहीं जा रहा, परसेप्शन पे जा रहा है। एग्जैक्टली मैम, तो यही मेरा कहना है कि जस्टिस जो है, जैसे जस्टिस इज अ डिफाइंड टर्म, उसका परसेप्शन लेने की जरूरत नहीं है। जस्टिस तो जस्टिस है। Thank you. And justice begets equality. जी, thank you. हाँ जी नहीं वो Thank you, Honorable Chair and our panelists, for those valuable insights and profound discourse. With this, we come to the end of the session. I take the privilege of expressing our deepest gratitude to our resource persons and Honorable Chair. Thank you, ma'am. Since we are running late of time,
इसलिए जो टी ब्रेक था उसको शॉर्ट करके टी यहीं सर्व की गई है, एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट सेशन, सो प्लीज़ बी रिमेन सीटेड. थैंक यू.